آج ہم اپنے رب کے حضور ایسی فریاد پیش کریں گی جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے نکلی ہے، ایک ایسی دعا جو ہمارے دکھوں کا علاج ہے، ہمارے آنسوؤں کی زبان ہے، ہمارے دل کی چیخ ہے۔ آج ہم وہی کہیں گی جو برسوں سے ہمارے اندر قید تھا، جو لفظوں میں آ کر بھی لبوں تک نہ پہنچ سکا۔ آج ہمارے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ یا اللہ، اس رمضان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا اور ہمارا مقدر بدل دینا۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جھولی پھیلائے، دل کی گہرائیوں سے فریاد کرتی ہے، تیری رحمت کی طالب ہے، تیری مغفرت کی امید رکھتی ہے، تیرے در پر جھکی ہوئی ہے، تیرے کرم اور مہربانی کی مستحق بننا چاہتی ہے۔ یا اللہ، تیسرے روزے کے صدقے جو اس دنیا سے جا چکے، جو مٹی تلے دفن ہو چکے، جن کے جسم گل سڑ گئے، جن کی ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو درگزر فرما، ان کے لغزشوں کو مٹا دے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جو شہید ہو گئے، جو تیری راہ میں اپنی جانیں قربان کر گئے، جو ظلم سہ کر تیرے دین پر چلتے ہوئے مارے گئے، جو مظلوم تھے، جو بے آسرا تھے، جو بے کسی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، ان کے خون کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند کر، انہیں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ جگہ دے، ان کے خاندانوں کو صبر عطا کر، ان کے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ، ان کی نسلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، ان کے والدین کو جنت میں ان کا دیدار نصیب کر۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ اور منور کر، ان کی تنہائی کو ختم کر، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ان کے لیے راحت کا سامان مہیا کر، انہیں قبر کے اندھیروں سے نکال کر نور سے بھر دے، انہیں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا کر، ان کے اعمال کا حساب آسان کر، ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، جو ماں اپنے چھوٹے بچوں کو روتا چھوڑ گئی، جو بیٹی بے گناہ قتل کر دی گئی، جو بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں دنیا چھوڑ گئی، جو بہن اپنے بھائی کے سائے سے محروم ہو گئی، جو باپ بے کسی میں دنیا سے چلا گیا، جو یتیم بچے اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے، ان سب پر اپنی رحمت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر، ان کے لیے برزخ کی زندگی کو آسان کر، انہیں سکون عطا کر، انہیں راحت عطا کر، انہیں آخرت کی تمام سختیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو قبر میں بے نام و نشان دفن ہیں، جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں، جن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، جو لاوارث دنیا سے رخصت ہو گئے، جو پردیس میں مر گئے، جو اپنے وطن کی مٹی کو ترس گئے، جو حادثات میں مر گئے، جو بغیر غسل، بغیر جنازے، بغیر کفن دفن کر دیے گئے، ان سب کو جنت کے بہترین لباس عطا کر، ان کے لیے برزخ کی راتوں کو روشن کر، انہیں عذاب سے نجات دے، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو راحت کا مقام بنا، ان کے لیے جنت الفردوس کی خوشبوؤں کو مہکا دے، ان کے اعمال میں سے جو اچھے ہیں ان پر اجر دے، اور جو برے ہیں انہیں معاف کر، انہیں جہنم کی آگ سے بچا، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی مغفرت کے سائے میں رکھ، ان پر اپنا فضل و کرم فرما، انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، ان پر رحم کر۔ یا اللہ، جو دنیا میں بے گناہ قتل کیے گئے، جو زخم سہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن پر ظلم ہوا، جنہیں ستایا گیا، جو اپنے دکھوں کا مداوع نہ پا سکے، جو دنیا سے حسرتوں کے ساتھ چلے گئے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں بہترین مقام عطا کر، انہیں وہ مقام عطا کر جو تیرے مقرب بندوں کو حاصل ہے، ان کی قربانیوں کو قبول کر، ان کے دکھوں کا ازالہ کر، ان کے ساتھ انصاف فرما، ان کے حق میں بہتر فیصلے کر، ان کی مغفرت فرما، انہیں ایسی جنت عطا کر جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں کوئی دکھ نہ ہو، جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں صرف راحت اور خوشی ہو، جہاں صرف تیری رضا ہو، جہاں ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون ہو۔ یا اللہ، جو دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کے اعمال برے تھے، جن پر دنیا میں ہی سختی آ گئی تھی، جنہیں لوگ گنہگار سمجھ کر بھول گئے،
जो अपने गुनाहों की ज्यादती के सबब शर्मिंदा होकर दुनिया से रुखसत हुए, जो कब्र में पकड़ में आ चुके हैं, उन सब पर अपनी मगफिरत नाजिल कर, उनके लिए अपने रहम के दरवाजे खोल दे, उनके गुनाहों को माफ कर, उन्हें अपनी सजा से बचा, उन्हें जहन्नम से आजाद कर, उन्हें जन्नत की खुशबू अता कर, उनके आमाल का वजन हल्का कर, उन पर अपना फजलो करम फरमा, उन्हें अपनी रहमत में ढांप ले, उन्हें हमेशा के लिए अपनी मगफिरत के साये में जगह दे और उनके तमाम गुनाहों को माफ करके उन्हें जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना। या अल्लाह, हम सब तेरी बारगाह में हाजिर हैं, झोली फैलाए दिल की गहराइयों से फरियाद करती हैं, तेरी रहमत की उम्मीद लगाए बैठी हैं, तेरी मदद की तालिब हैं। या अल्लाह, तीसरे रोजे के सदके उन सब की मदद फरमा जो दुनिया की मुश्किलात में घिर चुके हैं, जो मायूसियों में घिर चुके हैं, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिनके दिल बोझल हो चुके हैं, जो अपने गमों से निढाल हो चुके हैं, जो अपने दुखों से बेहाल हो चुके हैं, जो दुनिया के जुल्म से तंग आ चुके हैं, जिन्हें अपने ही करीबी लोगों ने धोखा दिया, जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया, जो तन्हाई में पड़े आहें भर रहे हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्हें जिंदगी की मुश्किलात ने बेहाल कर दिया, जो फाकों में जी रहे हैं, जिनकी रोटी का आसरा खत्म हो चुका है, जिनके घरों में भूख का डेरे है, जो अपने बच्चों की भूख से बेबस हो चुके हैं, जिनके घरों में चूल्हा ठंडा पड़ चुका है, जो दूसरों के दरवाजों पर दस्तक देकर भी खाली हाथ लौट आते हैं, जो कर्जों में जकड़े जा चुके हैं, जिनके सर पर मकरूज होने का बोझ है, जो दिन रात रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, जिनके हाथ खाली हो चुके हैं, जिनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जो सख्त आजमाइशों में मुबतला हैं, जिनकी दुनिया की रौनकें खत्म हो चुकी हैं, जो खुशियों के लिए तरस रहे हैं, जिनके आंसू खुशक नहीं हो रहे, जिनके चेहरे खुशी को तरस चुके हैं, जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, जो हर दरवाजा खटखटाकर मायूस हो चुके हैं, जो फरियाद कर कर के हिम्मत हार चुके हैं, उन सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, जो रिज़्क़ की कमी में मुबतला है, उन्हें कुशादगी अता कर, जो फाकों में हैं उन्हें रिज़्क़ की फरावानी दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें बेहतरीन रोजगार अता कर, जो मखरूज हैं उनके कर्ज अदा करा दे, जो भूख में हैं उन्हें तेरी नेमतों से सैर कर, जो महरूमियों में जी रहे हैं उनके लिए राहत का सामान कर, जो बेसहारे हैं उन्हें अपना सहारा दे, जो बेयार ओ मददगार हैं उन्हें अपनी रहमत की छांव में ले ले। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनके जिस्मों को शिफा दे, जो दुखों में हैं उनके गमों को खुशियों में बदल दे, जो बेसकूनी में हैं उन्हें चैन और राहत अता कर, जो बेकरारी में हैं उनके दिलों को सुकून दे, जो बेबसी में हैं उनके लिए आसानी पैदा कर, जो रोने पर मजबूर हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दे, जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं उनके दिलों में उम्मीद की किरण पैदा कर। या अल्लाह, जो अपनों के सितम सह रहे हैं, जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया, जो बेयार ओ मददगार हो चुके हैं, जिनके अपने उनके दुश्मन बन गए, जिन्हें अपनों ने धोखा दिया, जिन्हें मोहब्बतों के बदले में तकलीफ मिली, जो अपनों के ही जुल्म का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें उनके सबसे करीबी लोगों ने तन्हा कर दिया, उनके दिलों के जख्मों पर मरहम रख, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके दुखों को दूर कर दे, उनकी परेशानियों को आसानी में बदल दे, उनकी तकलीफों को खत्म कर दे, उनकी बेबसी को खत्म करके उनके लिए रास्ते खोल दे, उन्हें वो सुकून अता कर जो सिर्फ तू दे सकता है। या अल्लाह, जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं, जो मायूसी की खाई में गिर चुके हैं, जो गमों के समंदर में डूब चुके हैं, जो परेशानियों के बोझ तले दब चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोच चुके हैं कि उनकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं, उनके लिए उम्मीद का दरवाजा खोल दे, उनकी मायूसी को खत्म कर दे, उनके दिलों को सब्र अता कर, उनके नसीबों को अच्छा कर, उनकी तदबीरों में बेहतरी पैदा कर, उनके दिनों को खुशियों से भर दे, उनके रास्ते आसान कर दे, उनकी मुश्किलों को खत्म कर दे, उनकी आजमाइशों को कामयाबी में बदल दे। या अल्लाह, जो बेघरी में हैं, जो रास्तों में रातें बसर कर रहे हैं, जो दूसरों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जिनके सर पर छत नहीं, जिनके पास जिंदगी गुजारने का कोई सहारा नहीं, उन्हें बेहतरीन जगह अता कर, उन्हें वो घर दे जहां वो सुकून से रह सकें, उन्हें अपनी हिफाजत में ले,
उन्हें अपने कर्म से माला माल कर, उन्हें इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दे। उनके लिए रिज्क के दरवाजे खोल दे, उनकी तंग दस्ती को खुशहाली में बदल दे, उनके चेहरों पर खुशी ला दे, उनके दिन अच्छे कर दे, उनकी रातों को पुरसुकून कर दे, उनके नसीबों में बरकत डाल दे, उनकी महरूमियों को खत्म कर दे, उनकी हर दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, तीसरे रोजे के सदके आज हम तेरी बारगाह में अपने उन तमाम अजीजों के लिए दुआ करती हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, जिनसे मोहब्बत और खुलूस का ताल्लुक है, जिनके साथ जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, जिनके साथ हंसी खुशी के लम्हे बसर होते हैं, जिनके साथ रिश्तों की मजबूती का एहसास है। या अल्लाह, हमारे वालिदैन के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, उनकी उम्र को बरकतों से भर दे, उनकी सेहत को कायम रख, उनके बुढ़ापे को आसान कर, उनके दिलों में सुकून डाल, उनके लिए जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भर दे, उनकी पेशानियों पर कभी परेशानी की शिकन न आने दे, उनके कदमों तले अपनी रहमत का साया कायम रख, उनकी हर दुआ को कबूल कर, उन्हें बेहतरीन आक़िबत अता कर, दुनिया व आखिरत में उन्हें कामयाब फरमा, उनकी नेक दुआओं को हमारे हक में कबूल कर। या अल्लाह, हमारे शरीके हयात के लिए भलाई लिख दे, उन्हें नेक और सालेह जिंदगी अता कर, उनके दिलों में सुकून पैदा कर, उनके लिए दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों के दरवाजे खोल दे, उनके रिज्क में कुशादगी अता कर, उनके दिन को बरकतों से भर दे, उनकी हर परेशानी को आसान कर दे, उनके कदमों को इस्तिकामत अता कर, उन्हें दीन पर चलने की हिम्मत अता फरमा, उनके लिए हर अच्छा फैसला मुकद्दर कर दे, उन्हें रिज्क हलाल अता कर, उनके दिलों को हर तरह की परेशानियों और वसवसों से महफूज रख, उन्हें सेहतमंद जिंदगी दे, उन्हें हमेशा के लिए हमारा सहारा बना, हमारे दरमियान मोहब्बत, इज्जत और सुकून को कायम रख, हमें एक दूसरे के लिए राहत का जरिया बना, हमें कभी एक दूसरे की तकलीफ का सबब न बना, हमें एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बना, हमें नेकी के रास्ते पर एक दूसरे का मददगार बना, हमारे घरों को खुशियों का गहवारा बना, हमारे दरमियान हर किस्म की गलत फहमियों को खत्म कर दे, हमें हमेशा इज्जत और मोहब्बत के बंधन में बांध कर रख, हमें एक दूसरे के लिए बाइसे खैर बना। या अल्लाह, हमारी औलाद को नेक और सालेह बना, उन्हें बेहतरीन अखलाक अता कर, उनके दिलों को नूर ईमान से भर दे, उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता कर, उनके नसीबों को संवार दे, उनके दिलों में तेरे लिए मोहब्बत और खौफ पैदा कर, उन्हें दुनिया की हर बुराई से महफूज रख, उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें शैतान के शर से बचा, उन्हें हर बुरी सोहबत से महफूज कर, उन्हें इल्म नाफे अता कर, उन्हें नेक कामों की तौफीकत दे, उनके कदमों को सीधे रास्ते पर चला, उन्हें फरमान बरदार और मोहब्बत करने वाला बना, उन्हें हमारे लिए बाइसे रहमत बना, उनकी सेहत में बरकत अता कर, उनके जहन को कुशादा कर, उन्हें इल्म और हिकमत अता कर, उन्हें बेहतरीन दोस्त और साथी अता कर, उनकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा कर, उन्हें अपनी पनाह में रख, उन्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रख, उन्हें कभी बेराह रवी का शिकार न होने दे, उनके दिलों को नरम बना, उन्हें सच्चाई और दयानतदारी का सबक दे, उन्हें अच्छे अखलाक वाला बना, उनके लिए दीन और दुनिया की कामयाबी का दरवाजा खोल दे, उन्हें ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरे पसंदीदा बंदों जैसी हो। या अल्लाह, हमारे बहन भाइयों के लिए बरकत और भलाई लिख दे, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर, उनके दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी को कायम रख, उन्हें एक दूसरे के लिए सहारा बना, उन्हें कभी इख्तिलाफात में न उलझने दे, उनके दिलों में मोहब्बत का चिराग रोशन रख, उन्हें हसद, बुग़्ज़ और कीना से दूर रख, उन्हें हमेशा एक दूसरे का खैरख्वाह बना, उनकी परेशानियों को खत्म कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी जिंदगी को आसान कर, उन्हें इज्जत अता कर, उन्हें कामयाबियों से नवाज, उन्हें हर शर से महफूज रख, उन्हें नेक आमाल की तौफीक दे, उन्हें रिज़्क़ हलाल अता कर, उनके दिलों को खुशियों से भर दे, उनके घरों को अमन व सुकून का गहवारा बना। या अल्लाह, हमारे हमसायों के लिए आसानियां पैदा कर, उनके घरों में रहमतों की बरसात फरमा, उनके दिलों में सुकून डाल, उनके लिए खैर के दरवाजे खोल दे, उन्हें रिज़्क़ में बरकत दे, उनके बीमारों को शिफा अता कर, उनके बच्चों को नेक बना, उनके मुआमलात को आसान कर,
उनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, उनके दिलों से हर किस्म की परेशानियों को निकाल दे, उनके घरों में बरकत अता कर, उनके रिश्ते मजबूत कर, उन्हें आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद अता कर, उनकी मुश्किलात को आसान कर, उनके दिलों में हमदर्दी और खैर ख्वाही पैदा कर, उन्हें एक दूसरे के लिए बाइस सुकून बना, उनकी हर नेकी को कबूल कर, उनके तमाम जायज मकासद को पूरा कर, उनके हक में भलाई लिख, उन्हें हर फितना और आजमाइश से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम रिश्तेदारों के लिए रहमत और मगफिरत का फैसला कर, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो तंग दस्त हैं उनके लिए रिज़्क़ में वुसअत पैदा कर, जो बेरोजगार हैं उन्हें बेहतरीन रोजगार अता कर, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता कर, जो बेघर हैं उन्हें छत नसीब कर, जो किसी परेशानी में मुबत्तला है उनकी मुश्किल को आसान कर, जो किसी दुख में है उनके गमों को खुशियों में बदल दे, जो आजमाइश में है उन्हें इस्तिकामत अता कर, उनके दिलों को सुकून अता कर, उनके घरों में मोहब्बत और बरकत अता कर, उन्हें इज्जत और वकार अता कर, उन्हें हर फितना और आजमाइश से महफूज रख, उनकी हर जायज दुआ को कबूल फरमा, उनके मुकद्दर में खैर लिख दे, उनके दिनों को खुशियों से भर दे, उनके घरों को जन्नत का नमूना बना, उनके दिलों में तेरे लिए मोहब्बत पैदा कर, उन्हें हमेशा तेरी रजा के रास्ते पर चलने वाला बना, उन्हें दीन और दुनिया की कामयाबी अता कर, उन्हें दुनिया व आखिरत में सरफराजी नसीब कर, उनके लिए खैर बरकत के दरवाजे खोल दे, उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा कर, उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर दे, उनके हक में बेहतरीन फैसले फरमा, उन्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रख, उनके लिए वही फैसला कर जो उनके लिए बेहतर हो, उन्हें कभी किसी आजमाइश में न डाल, उन्हें हमेशा अपने फजल करम में रख, उनके नसीबों में भलाई लिख, उन्हें कभी रुसवाई और परेशानी का सामना न हो, उनके लिए जिंदगी की तमाम राहें आसान कर, उनके दिलों को सुकून और राहत अता कर, उनके घरों में खुशियों की बहार ले आ। या अल्लाह, तीसरे रोजे के सदक़े आज हम तेरी बारगाह में पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करती हैं, उन सब के लिए जो दुनिया में तेरे नाम पर जीते हैं, जो तेरे दीन के मानने वाले हैं, जो तेरे कलमे के वारिस हैं, जो तेरे नबी के उम्मती हैं, जो तेरी रजा के तलबगार हैं, जो तेरी रहमत के मोहताज हैं, जो तेरे फजल की उम्मीद रखते हैं, जिनकी आंखें उम्मीदों के चराग जलाए बैठी हैं, जिनके दिल दुखों से बोझल हो चुके हैं, जिनके ख्वाब टूट चुके हैं, जिनके सहारे छिन चुके हैं, जिनकी जिंदगी मुश्किलात में घिर चुकी है, जिनके नसीब आजमाइशों में पड़े हैं, जो अपनी बेबसी पर आहें भर रहे हैं, जो दुनिया के निजाम में पिस चुके हैं, जो दूसरों के दरवाजों पर सवाली बन चुके हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं, जिन्हें कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, जो बेयार व मददगार हैं, जो मायूसी में डूब चुके हैं, जिनकी रातें रोते गुजरती हैं, जिनकी दुआएं आसमान को हिला रही हैं, जिनके अल्फाज दुखों की शिद्दत में लरज रहे हैं, जिनके दिलों में दर्द का बोझ है, जो तेरे दर के सिवा किसी दर को नहीं जानते, उन सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, वो सब जो कर्जों में जकड़े जा चुके हैं, जिनकी आमदन खत्म हो चुकी है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जिनके घरों में फाके हैं, जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, जो दिन रात रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जिनकी मेहनत के बावजूद रिज़्क़ में बरकत नहीं, जिनकी तिजारत खसारे में जा चुकी है, जिनकी दुकानें सुनसान हो चुकी हैं, जो मेहनत करते हैं मगर उनके नसीब में खुशहाली नहीं, जो दूसरों के दरवाजों पर दस्तक देकर भी खाली हाथ लौटते हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के मोहताज हो चुके हैं, उन सब के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, उनकी तंग दस्ती को खुशहाली में बदल दे, उनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत डाल दे, उनके घरों में रहमत की बरसात कर दे, उन्हें गनी बना दे, उनके दिन आसान कर दे, उनके चेहरे की उदासी को खुशियों में बदल दे, उनके खाली हाथों को नेमतों से भर दे, उनके लिए जमीन व आसमान के खजानों में से बेहतरीन हिस्सा अता कर दे। या अल्लाह, वो माएं जो अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, जो अपनी बेटियों के नसीब के लिए फिक्रमंद हैं, जो अपने बेटों के रोजगार के लिए दुआएं मांग रही हैं, जो अपनी औलाद की नाफरमानी से बेबस हो चुकी हैं, जो अपनी गोद में बीमार बच्चों को लेकर तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा रही है, जिनके घरों में गुर्बत ने डेरे डाल दिए हैं, जो हर रात तेरे दर पर अपनी हाजात लेकर आती हैं,
उन सब की दुआओं को कबूल कर, उनके घरों में आसानियां पैदा कर, उनकी औलाद को नेक बना, उनके बेटों के नसीब अच्छे कर दे, उनकी बेटियों को इज्जत वाले घरों में आबाद कर, उनकी गोद को खुशियों से भर दे, उनके आंसू पोंछ दे, उनके दिलों की बेकरारी को खत्म कर दे, उनकी दुआओं को पूरा कर दे। या अल्लाह, वो बहनें जो अपने घरों में जुल्म सह रही हैं, जिनके शौहर उन पर जुल्म कर रहे हैं, जो अपनों की बेरुखी सह रही हैं, जो ससुराल में बेइज्जती सह रही हैं, जो अपनों के रवैयों से झकमी हो चुकी हैं, जो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार रही हैं, जो दूसरों के रहम ओ करम पर जिंदा हैं, जो अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए तेरी मदद की उम्मीद लगाए बैठी हैं, उन सब की मदद फरमा, उन्हें इज्जत अता कर, उन्हें मोहब्बत देने वाले लोग अता कर, उन्हें नेक शरीक ए हयात नसीब कर, उन्हें इज्जत की जिंदगी दे, उनके लिए आसानियां पैदा कर, उनके रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर, उनके लिए मोहब्बत, सुकून और रहमत के दरवाजे खोल दे, उनके दिलों के दुखों को दूर कर दे, उनके जख्मों पर मरहम रख, उनके दुश्मनों को उन पर रहमदिल बना दे, उन्हें दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी अता कर। या अल्लाह, वो सब मुसलमान जो जुल्म का शिकार हैं, जो कैद में हैं, जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जो अपनी जमीनों से निकाल दिए गए हैं, जो अपने मुल्कों में अजनबी हो चुके हैं, जो अपनों के ही हाथों सताए जा रहे हैं, जो दुनिया की ताकतों के जुल्म सह रहे हैं, जो खून में नहलाए गए, जिनके बच्चे यतीम हो चुके, जिनकी औरतें बेवा हो चुकी, जिनके मर्द कत्ल कर दिए गए, जो अपनी इज्जतें बचाने के लिए भाग रहे हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनकी बस्तियां जला दी गईं, जिनके ख्वाब तोड़ दिए गए, उन सब की फरियाद को कबूल कर, उन पर रहम फरमा, उनके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर, उन पर अपनी मदद उतार, उनके लिए जमीन के रास्ते आसान कर, उनके गमों को खुशियों में बदल दे, उनके दुखों को दूर कर, उनके घरों को दोबारा आबाद कर, उनके बच्चों को महफूज कर, उनकी इज्जतों की हिफाजत कर, उनके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे, उनकी चीखों को आफियत में बदल दे, उन्हें तेरी रहमत की छांव में जगह अता कर। या अल्लाह, वो सब जो बीमार हैं, जो दर्द में मुबतला हैं, जो बिस्तर पर पड़े अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, जो दवा ले रहे हैं मगर शिफा नहीं पा रहे, जो तकलीफ में कराह रहे हैं, जो इलाज के पैसे न होने की वजह से मौत के दहाने पर खड़े हैं, जो अपनी सेहत की बेहतरी के लिए तुझसे दुआ मांग रहे हैं, उन सबको शिफा दे, उनकी बीमारियों को दूर कर, उनके दर्दों को राहत में बदल दे, उनके जिस्मों को सेहत व तंदुरुस्ती अता कर, उनके लिए शिफा का रास्ता खोल दे, उनके लिए आसानियां पैदा कर, उनकी दुआओं को कबूल कर, उनके लिए बेहतरीन फैसले कर, उनकी जानों को तकलीफ से निजात दे, उन्हें हमेशा के लिए बीमारियों से महफूज कर, उनके जिस्मों में ताकत अता कर, उन्हें सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी अता कर। या अल्लाह, उम्मत ए मुस्लिमा पर रहम फरमा, इसके बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त कर, इसके जख्मों पर मरहम रख, इसे एक कर, इसे इज्जत दे, इसे कामयाबी दे, इसे अपनी हिफाजत में ले, इसे कभी दुश्मनों के हाथों जलील न होने दे, इसके लिए उरूज और तरक्की के दरवाजे खोल दे, इसे अपनी रहमत में ले ले, इसे हमेशा अपने दीन पर साबित कदम रख, इसे दुनिया में सर बुलंद कर, इसे अपने दुश्मनों पर फतह अता कर, इसके लिए खैर और भलाई मुकद्दर कर दे, इसके दुश्मनों को इसके खिलाफ नाकाम बना, इसके हक में भलाई के फैसले कर, इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, इसके लिए जमीन के रास्ते आसान कर, इसे सुकून, खुशहाली और कामयाबी नसीब कर। या अल्लाह, तीसरे रोजे के सदके हम अपने मुल्क के लिए दुआ करती हैं, हमारे मुल्क को अमन, सुकून और खुशहाली अता फरमा, इसे दुश्मनों के शर से महफूज रख, इसे फसाद, फितने और जुल्म व जौर से पाक कर, इसे तरक्की की राहों पर गामजन कर, इसे दुनिया के लिए एक मिसाल बना, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर, इसे कुदरती आफात और हादसात से बचा, इसके बाशिंदों के दरमियान मोहब्बत, उखुव्वत और भाईचारा पैदा कर, इसे फिरका वारियत और इंतशार से महफूज रख, इसकी दौलत में बरकत डाल, इसके वसाइल को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल में ला, इसे दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल कर, इसे ऐसा बना जहां हर शहरी को इंसाफ मिले, जहां हर मजलूम को उसका हक मिले, जहां कोई भूखा न सोए, जहां कोई बेरोजगार न हो, जहां कोई जुल्म का शिकार न हो,
جہاں ہر فرد محفوظ ہو، جہاں ہر ماں بہن بیٹی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے، جہاں حلال رزق آسان ہو، جہاں ہر طرف برکت، رحمت اور خیر کا سایہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو نیک، صالح اور دیانتدار بنا، انہیں ایسا بنا جو اپنے عوام کی بھلائی کے لیے سوچیں، جو عدل و انصاف کے علمبردار ہوں، جو عوام کی مشکلات کو حل کرنے والے ہوں، جو ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں، جو غریبوں کی فریاد کو سنیں، جو یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنے، جو اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر چلیں، جو رشوت، کرپشن اور لوٹ مار سے پاک ہوں، جو اپنے عہدے کو عبادت سمجھ کر سنبھالیں، جو رعایا کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھیں، جو فیصلے انصاف پر کریں، جو غریب اور امیر میں فرقہ نہ کریں، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں، جو امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کام کریں، جو اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو ملک کو اندرونی اور باہری خطرات سے محفوظ رکھیں، جو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں۔ یا اللہ، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خیر لکھ دے، ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر بے بس کا سہارا بن، ہر لاچار کی دستگیری کر، ہر بھوکے کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے، ہر بیمار کو شفا دے، ہر یتیم کے لیے سہارا بن، ہر بیوہ کے لیے مدد کا ذریعہ پیدا کر، ہر بے گھر کو چھت عطا کر، ہر بے روزگار کو روزگار عطا کر، ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم کر، ہر مقروض کے قرض کو ادا کرا دے، ہر ظلم سہنے والے کو انصاف عطا کر، ہر خوفزدہ کو امن عطا کر، ہر محروم کو نعمت عطا کر، ہر ستم رسیدہ پر رحم فرما، ہر امت محمدیہ کے فرد کے لیے آسانیاں پیدا کر، ہر آزمائش میں مبتلا کو استقامت دے، ہر دین کے راستے پر چلنے والے کی حفاظت کر، ہر مسلمان ملک کو کفار کے شر سے محفوظ رکھ، ہر ملک میں اسلام کو سر بلند کر، ہر قوم کو حق اور سچ پر قائم رکھ، ہر فتنہ پرور کو ناکام بنا، ہر سازش کو بے اثر کر، ہر ظلم کے خلاف تیرا قانون غالب ہو، ہر خطے میں اسلام کی روشنی پھیلے، ہر جگہ تیرے دین کا بول بالا ہو۔ یا اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ایمان پر موت دے، ہمیں نزع کے وقت کلمہ نصیب کر، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کی تنہائی کو رحمت میں بدل دے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر، ہمارے نام اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، ہمارے لیے حساب کو آسان کر، ہمیں نبی کے حوض کوثر سے پانی پلوا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر، ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے قریب کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں آخرت کی کامیابی نصیب ہو، ہمارے ہر اچھے عمل کو قبول کر، ہمارے ہر گناہ کو معاف کر، ہماری ہر خطا کو مٹا دے، ہمیں اپنی جنت کی دائمی نعمتوں کا حقدار بنا، ہمیں وہ زندگی عطا کر جس میں تیرا قرب ہو، ہمیں وہ آخرت عطا کر جس میں تیرا دیدار ہو، ہمیں وہ مقام عطا کر جہاں تیرے محبوب بندے ہوں، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ، ہمیں کبھی تیرے عذاب کا سامنا نہ ہو، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا خصوصی کرم ہوتا ہے، ہمیں قیامت کے دن ذلت سے بچا، ہمیں جنت میں اپنے مقرب بندوں کے ساتھ رکھ، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے فضل و کرم میں رکھ، ہماری ہر دعا کو قبول کر، ہماری ہر فریاد کو سن، ہمیں کبھی مایوس نہ کر، ہمیں اپنی رحمت کے دروازے سے خالی نہ لوٹانا، ہمیں ان میں شامل کر جن پر تیرا دائمی کرم ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں میں رکھ، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، میری آج کی دعا قبول فرما اور مجھے اگلی دعا قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔